चलिए, as you all know that till now we have a little bit of idea how actually a turtle graphics works in Python, and you can see here on the screen that a Python in Python a small cursor in a particular shape is known as a turtle, है ना? So is turtle is a small graphical symbol, है ना, that you can control on your screen, and let us move to the next. ठीक है? So if we are using turtle graphics, then first of all what we need to do, we have to import a module. The name of the module is turtle, as you can see here in the figure. ये आपको जो statement लिखा हुआ है import turtle, this statement is necessary if you are doing if you are programming with turtle. So this is important statement, import turtle. What does it mean actually? It imports all the facilities with which you can work with turtle. So this actually import turtle module, importing turtles module loads the turtle module into memory. Now this is a command which can show your turtle. So a simple command you have to use, show turtle, as you can see on your screen. This command show turtle is used to show the turtle on the output screen. You have to write turtle dot show turtle. Now the next command is, if we want to forward or move the turtle, then we can use this forward command, which you can see here, forward, and in bracket you will write the number of pixels with by which you want to move the turtle. ओके, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये मूवमेंट होगा जितने भी पिक्सेल्स का आप लिख रहे हैं, जैसे एग्जांपल हियर इट इज रिटन 100, तो ये जो मूवमेंट होगा ये किस डायरेक्शन में होगा, कोई बता सकता है आप में से? राइट, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन नहीं, फॉरवर्ड आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि ये जो मूवमेंट होगा टर्टल का, ये उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में टर्टल जो है अपना हेड किए हुए। टर्टल का हेड जिस डायरेक्शन में होगा, ये फॉरवर्ड कमांड उसी डायरेक्शन में मूव करेगी टर्टल को। बाय डिफॉल्ट द डायरेक्शन ऑफ द टर्टल्स हेड इज टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑन आवर स्क्रीन। तो I was just asking कि what actually a pixel is. पिक्सेल आप जानते हैं पिक्सेल क्या होता है? नो सर, सर जो ओमेगा पिक्सल होता है, डिस्प्ले बनी होती है सर, पूरी डिस्प्ले पिक्सल से बनी होती है। हाँ, ये आपको बताऊं, देखिए पिक्सेल्स एक्चुअली स्मॉल पिक्सेल्स। हाँ, आप ऐसे समझ सकते हैं कि every electronic gadget which has a screen, the screen is made up of tiny dots which are called pixels, है ना? तो पिक्सेल्स जितना ज्यादा आपकी स्क्रीन पे पिक्सेल्स होंगे, वी से कि इसका रिजोल्यूशन उतना ही हाई है, ठीक है? और जितना भी हाई क्लैरिटी बहुत ज्यादा, हाँ, जितना हाई रेजोल्यूशन होता है उतना ही क्लैरिटी ज्यादा होती है। हाई रेजोल्यूशन का मतलब है स्क्रीन पर उस एरिया में पिक्सेल्स की संख्या जो होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है? तो forward command, when we say forward 100, then it is going to move 100 pixels to in the direction where the turtle's head is heading. So it is quite a simple command. Now some other commands which we can use with turtle is, one is write. Write, you can see here, write command. Yes sir, है ना? तो write command is actually, here you can see this command write, this one, this command write needs an angle.
तो एंगल आपको ब्रैकेट में देना है एंगल की वैल्यू। तो राइट साइड पर आपका जो टर्टल का हेड है वो राइट साइड पर उतने एंगल से टर्न हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन यूज लेफ्ट कमांड फॉर मूविंग द एंगल टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आपके जो दो कमांड्स हैं लेफ्ट और राइट, ये कमांड आपके टर्टल के हेड के डायरेक्शन को मूव करने के लिए होते हैं बेटा, है ना। तो हमें ये देखना है कि हमारा जो फिगर है, हम टर्टल को जिधर भी मूव करना चाहते हैं कि हाउ मच डिग्री ऑफ एंगल्स वी नीड, उतना एंगल हम ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, द एंगल इज इन डिग्रीज। नाउ दिस कमांड, this simple program which has 4 lines, you can see initially our turtle was at this position. When we forwarded it to 100 pixels towards right hand side, it moved here at this point. Then we turned left by 90 degree. So left पे 90 degree move हो गया and then we again forwarded 100 pixels. तो ये आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये राइट साइड में पहले फॉरवर्ड हुआ, फिर 90 डिग्री लेफ्ट पे आपको टर्न मिला और टर्न हो के फिर 100 आपने मूव किया लेफ्ट हैंड साइड पे। नाउ सिमिलरली यू कैन सी एन एग्जांपल ऑफ राइट टर्न। तो इसमें जो 3 कमांड्स लिखी हैं, फॉरवर्ड 100, तो फर्स्ट वी फॉरवर्डेड 100 पिक्सेल्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, देन वी इंस्ट्रक्टेड to move the head of the cursor by 45 degree towards right hand side. तो ये 45 राइट पे आपका टर्न हो गया एंड देन वी फॉरवर्डेड 100 पिक्सेल्स। तो ये आपका लाइन 100 पिक्सेल्स 45 डिग्री पे राइट साइड में ड्रॉ हो गया। ठीक है, देखिए ये तो था राइट और लेफ्ट पे मूव करने का। अब आप समझिए कि हम सेट हेडिंग, जो ये कमांड है सेट हेडिंग, दिस वन सेट हेडिंग एंगल, सेट हेडिंग से हम एंगल तय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एंगल के लिए लेफ्ट या राइट डायरेक्शन नहीं है ना। ये एंगल आपका उसी तरह से होगा जैसे हम अपने मैथमेटिक्स में एंगल्स को ड्रॉ करते हैं ना। जैसे अगर इस प्रोग्राम को आप देखेंगे, फॉरवर्ड 50, तो फॉरवर्ड 50 से आप यहाँ से यहाँ मूव कर गए 50 पिक्सेल्स, फिर उसने कहा सेट हेडिंग 90, तो 90 डिग्री का एंगल आपका, हम जब भी एंगल बनाते हैं अपनी कॉपी पर, तो एंगल आपका किस डायरेक्शन बनता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये भी देखिए 90 डिग्री पर ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी 90 डिग्री इधर उसने लिया, फिर हम फॉरवर्ड किए 100 तो यहाँ आ गया। इसके बाद उसने क्या किया 180 डिग्री। अब 180 डिग्री का एंगल आप देखिए, यहाँ पर टर्टल की डायरेक्शन जो है उसको आप हमेशा कहाँ समझेंगे, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। और उस राइट हैंड साइड पर, मतलब वो राइट हैंड साइड को फेस कर रहा होगा टर्टल का हेड, उसके रेस्पेक्ट में एंगल देखेंगे। तो यहाँ पर जब हम इस पॉइंट पर आएंगे यहाँ पर, तो इस पॉइंट पर हमें लेफ्ट में जाना है। तो उसने क्या किया, यहाँ से टर्टल को 180 डिग्री पे मूव किया। तो जो टर्टल की डायरेक्शन आपकी इधर थी, इस साइड में, पहले इधर इस साइड में थी, और इससे वो 180 डिग्री एंगल मूव कर गया, तो उसकी डायरेक्शन अब किधर हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, बिल्कुल इस साइड में, है ना। तो ये फिर आपने मूव किया। अब इधर इस पॉइंट पर, यानी यहाँ पर आने के बाद में इसकी डायरेक्शन आप फिर समझिए कि आप इसकी डायरेक्शन इधर ही है अभी, है ना। अब आपको नीचे ले जाना है, तो आपकी डायरेक्शन अभी इधर है, और नीचे ले जाने के लिए आपको एंगल कितना बनाना पड़ेगा, 90। 270। देखो आपको डायरेक्शन करना है ऐसे, नीचे की तरफ आपको डायरेक्शन करना है। अभी आपकी डायरेक्शन है ये डायरेक्शन अभी इनिशियली है ये। अब आपका एंगल जो हुआ वो इतना हुआ, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक, ये कितना एंगल हुआ सर? 270 डिग्री। तो ये 270 डिग्री आप देख सकते हैं, यहाँ पे 270 डिग्री ये लिखा हुआ है ना। तो यहाँ से 270। तो देखिए लेफ्ट और राइट कमांड जो है वो आपका, लेफ्ट वाला कमांड लेफ्ट में मूव करता है एंगल को, राइट वाला राइट में।
लेकिन ये जो कमांड है सेट हेडिंग, ये आपके जो टर्टल का हेड है उसको हमेशा ऐसे मान के चलता है कि वो इधर है, ऐसे। अब इस हेड को उसे मूव करना है तो कितने डिग्री मूव करना है ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। वो हमेशा ऐसे ही मूव करेगा, लेफ्ट टू वो राइट टू लेफ्ट, ऐसे करके मूवमेंट होगा इधर से इधर की साइड में, ऐसे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस सर। चलिए नेक्स्ट कमांड देखते हैं। अच्छा, अब आपको देखिए, जिस तरह से हमें कुछ भी लिखना होता है तो हम पेन को कागज से टच करके लिखते हैं ना, तो इसी तरह से हमारा टर्टल भी अगर अपनी ड्राइंग जो कैनवास है, हमारा स्क्रीन जहां पर है, उससे टच नहीं करेगा तो हम कितना भी उसको फॉरवर्ड कर लें, लाइन ड्रॉ नहीं होगी। तो अगर हमें ऐसा करना है कि टर्टल को मूव तो करना है स्क्रीन पर लेकिन लाइन ड्रॉ ना हो, तो आप ये कमांड यूज कर सकते हैं, पैन अप। पैन अप कमांड यूज करने से क्या होगा बेटा कि वो टर्टल को उस ड्राइंग कैनवास से ऊपर उठा लेगा, और ऊपर उठाने का मतलब है फिर आप उसको फॉरवर्ड करेंगे तो कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं होगी। लेकिन एक बार पेन अप करने के बाद में अगर आप फिर चाहते हैं कि लाइन ड्रॉ हो तो यू हैव टू पुट द टर्टल विद द कमांड पेन डाउन। तो पेन अप अगर आपने किया है तो कोई लाइन्स ड्रॉ नहीं होंगी। लाइन्स ड्रॉ करने के लिए आपको फिर से पेन डाउन कमांड का यूज करना पड़ेगा, तो कर्सर वो आपका जो टर्टल है फिर से ड्रॉ करने लगेगा। आप देख सकते हैं ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसमें देखिए फॉरवर्ड आपने 50 मूव किया तो ये लाइन ड्रॉ हो गई फर्स्ट वाली, 50 यहाँ आ गए आप इस पॉइंट पर। फिर आपने पेन को अप कर लिया यानी उठा लिया, और फॉरवर्ड 25 फिर आप मूव किए तो आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पे आ गए लेकिन कोई लाइन ड्रॉ नहीं हुई। फिर आपने पेन को डाउन किया यहाँ पर इस लाइन में, और पेन डाउन करने के बाद फॉरवर्ड किया 50 तो फिर से 50 लाइंस आप यहाँ आ गई और ये लाइन ड्रॉ हो गई। फिर पेन अप किया और 25 फॉरवर्ड मूव किया तो फिर आपका ब्लैंक यहाँ पे यहाँ आ गई, कोई लाइन ड्रॉ नहीं हुई। फिर आपने पेन डाउन किया और 50 लाइंस मूव किया तो आपका फिर से 50 लाइंस ये ड्रॉ हो गई। ठीक है, ये समझ में आ गई आपकी बात, पेन अप और पेन डाउन? यस सर। यस सर। Okay. Now let us see how we can draw a circle. So as we all know that circle has a radius. Okay sir. What we have to do, we have to give the number of pixels in the form of radius. तो उतने रेडियस का एक सर्किल ये हमारा टर्टल ड्रॉ कर देगा। तो द कमांड इज वेरी सिंपल, सर्किल, and here in the bracket you will write the radius. Okay, the example is given here, turtle dot circle 100, and you can see a circle with the radius 100 has been drawn here. सर हमको सिर्फ रेडियस ही डालना है? बस you have to put only the radius. ओके सर। चलिए अब आगे देखते हैं और कमांड्स को। अब देखिए एक कमांड है ये डॉट, दिस इज डॉट कमांड। तो डॉट कमांड से एक डॉट आपका डिस्प्ले हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं, टर्टल डॉट डॉट, डॉट से एक डॉट ये वाला ड्रॉ हो गया, दिस वन। देन फॉरवर्ड 50, आप 50 पिक्सेल्स आगे बढ़ गए, फिर एक डॉट, फिर 50 आगे, फिर एक डॉट, फिर एक 50 आगे। So in this way, this type of graphics you can draw using this code, which is shown here on the screen. Yes sir. Okay sir. Now see some other commands, which is pen size. So pen size का मतलब है कि आपका जो पेन है जो ड्रॉ कर रहा है उसका साइज क्या हो, साइज इन द सेंस कि उसकी थिकनेस क्या हो, है ना। तो आप इसको तय कर सकते हैं विद द पेन साइज फंक्शन, और ब्रैकेट में आपको देना है विड्थ, है ना। तो विड्थ आप नंबर ऑफ पिक्सेल्स में देंगे, उससे उसका जो थिकनेस है, ड्राइंग वाली लाइन जो आप ड्रॉ हो रही है
उसकी जो मोटाई है उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और पेन कलर, इस पेन कलर फंक्शन से यू कैन सेट द कलर ऑफ द पेन। तो आपकी जो लाइन ड्रॉ होगी वो उसी कलर में होगी जो कलर का नाम आपने यहाँ पे लिखा है। बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि कलर जो आपको देना है वो कलर का नाम ऐसा होना चाहिए जो कंप्यूटर उसको रिकॉग्नाइज करे। ऐसे नहीं कि आप उसमें अपने मन से कोई भी नाम लिख देंगे कि भूरा, पीला, ऐसे नहीं लिखना आपको, है ना। You have to give a valid color name to the argument of this function pen color। अच्छा, अभी ये जो नीचे आपका दिया हुआ है, you can see here a code has been given here। और इस कोड में आप देख सकते हैं कि पेन साइज 5 किया, फिर पेन कलर को रेड करने के बाद एक सर्किल ड्रॉ किया गया है, एंड यू कैन सी हियर अ सर्किल इन द रेड कलर। गॉट इट? अच्छा, अभी इसमें देखिए जो हमारी विंडो आती है जिसमें कि हमें आउटपुट दिखता है, उस विंडो को भी हम सेट कर सकते हैं। और उस विंडो में देखिए जैसे बैकग्राउंड कलर है, बीजी कलर, ये फंक्शन बैकग्राउंड कलर के लिए यूज किया जाता है। और इसमें अगेन हम ब्रैकेट में एक कलर का नेम लिखते हैं। तो बैकग्राउंड कलर से आपकी जो स्क्रीन है, आउटपुट स्क्रीन, उसका कलर जो है वो जो भी कलर आप देंगे वो तय हो जाएगा। और ये जो है टाइटल फंक्शन, ये आपकी जो आउटपुट स्क्रीन है उसकी टाइटल बार पर जो लिखा आता है ना टाइटल, उस टाइटल को आप तय कर सकते हैं। ब्रैकेट में आप कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे जो कि टाइटल बार पर अपीयर होगा, ओके। और ये जो सेटअप फंक्शन से विड्थ और हाइट, आपकी जो स्क्रीन है ना, आपकी जो आउटपुट स्क्रीन है उसका साइज आप डिफाइन कर सकते हैं विड्थ और हाइट के रूप में, इस वाले फंक्शन से, सेटअप फंक्शन से। मैं अभी आपको एक प्रोग्राम के थ्रू बता दूंगा कैसे सेट करेंगे, ओके। अच्छा, एक कमांड है टर्टल की, रीसेट कमांड से, इस कमांड से आपकी क्या है कि जितनी भी ड्राइंग है ग्राफिक्स विंडो में जो दिख रही है वो सारी इरेज हो जाएंगी, है ना। और ड्राइंग का जो कलर है वो फिर से ब्लैक रीसेट हो जाएगा। टर्टल जो है अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा, जो सेंटर में होता है ना स्क्रीन के, वहां पर आ जाएगा टर्टल। और बैकग्राउंड कलर लेकिन ये चेंज नहीं करेगा, यानी रीसेट नहीं करेगा। बैकग्राउंड कलर आपने कुछ अगर रखा हुआ है तो उसको ये रीसेट फंक्शन चेंज नहीं करेगा, वो वही रहेगा। केवल चेंज होगी क्या कि जो भी ड्राइंग्स हैं वो हट जाएंगी, ड्राइंग का कलर ब्लैक हो जाएगा और टर्टल जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा जो बीच में होता है। अच्छा, एक फंक्शन जो क्लियर है सर, हाँ सर इसकी जरूरत क्या है रीसेट फंक्शन की, जबकि हम सर कोड को डिलीट कर सकते हैं? नहीं, रीसेट करने की आपको प्रोग्रामिंग में जरूरत पड़ सकती है बेटा, मैं आपको समझाऊंगा कि हमें क्यों जरूरत पड़ेगी। क्लियर जो है ये फंक्शन अगर आप यूज करते हैं तो क्लियर जो सारी ड्राइंग्स को आपकी आउटपुट विंडो में से इरेज कर देगा, लेकिन टर्टल की पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। टर्टल आपका लास्ट जहां पर जिस पोजीशन पर है वो वहीं रहेगा, ड्राइंग का कलर चेंज नहीं होगा, और बैकग्राउंड कलर भी, जो ग्राफिक्स विंडो है हमारी आउटपुट विंडो, उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज नहीं होगा। क्लियर केवल क्या करेगा, जो ड्राइंग है आपकी जो दिख रही है उस पे ग्राफिक्स विंडो पे, उनको सारी को डिलीट कर देगा। और एक फंक्शन है क्लियर स्क्रीन। ये फंक्शन आपका क्या करेगा कि जो भी ग्राफिक्स विंडो में ड्राइंग्स दिख रही हैं उन सबको आपकी इरेज कर देगा, कलर को ब्लैक सेट कर देगा, ड्राइंग कलर को, है ना, टर्टल को उसकी इनिशियल पोजीशन पर ला देगा, और आपकी जो बैकग्राउंड कलर है वो बैकग्राउंड कलर भी क्या हो जाएगी, व्हाइट हो जाएगी। उससे पहले अगर आपने उसको चेंज किया होगा तो वो चेंज्ड बैकग्राउंड कलर फिर से व्हाइट हो जाएगा अगर आप क्लियर स्क्रीन का यूज करते हैं। तो ये रीसेट, क्लियर और क्लियर स्क्रीन तीनों लगभग एक जैसी कमांड है, थोड़ा सा अंतर है ना। तीनों ही कमांड ड्राइंग्स को तो क्लियर कर देंगी सारे को, है ना। अच्छा, अब आप ये थोड़ा सा समझिए कि हमारी जो
हमारी जो आउटपुट स्क्रीन होती है वो आउटपुट स्क्रीन आपने एक्स और वाई एक्सिस पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। जैसे अगर मान लीजिए कि हमने हमारी ये जो विंडो है, सपोज करिए कि इधर से इधर तक यानी यहां से यहां तक इसका जो विड्थ है वो 600 पिक्सेल्स है, और इधर से इधर तक ये जो हाइट है, ये हाइट आपकी सपोज करिए 400 पिक्सेल्स है। तो ये जो एरिया बनता है आपका 600 बाई 400 पिक्सेल्स का बनता है। तो आपका जो ये है, यहाँ पर इनिशियली आप देखते हैं कि जो आपका टर्टल है वो इन द मिडिल ऑफ द स्क्रीन आता है। तो ये इसके जो कोऑर्डिनेट माने जाते हैं वो क्या माने जाते हैं, 0 0, यहाँ पर जहां पर ये होता है। तो आपको टर्टल की पोजीशन को अगर चेंज करना है, उसको कहीं भी मूव करना है टर्टल की पोजीशन को, तो एक कमांड हमारे पास होती है गो टू, और गो टू में आपको जो कोऑर्डिनेट्स देने होते हैं वो इसके हिसाब से देने होंगे जो आपको स्क्रीन दिख रही है। तो यहाँ पर देखिए दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। यहाँ पर दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी इतने एरिया में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दूसरा ये जो दूसरा क्वाड्रेंट है, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव पॉजिटिव। हाँ, तो इसमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की पॉजिटिव। ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? एक्स नेगेटिव यहाँ पर बोथ नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। अब देखिए इसका यूज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो गो टू कमांड है ना, इसमें लिखा है 0,100। तो 0,100 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 0 और y की कितना दे रखा है, 100। तो x की वैल्यू 0, y की 100 का मतलब है कि ये इस पोजीशन पर चला जाएगा जहां x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 100। तो अब आप देखेंगे कि x की वैल्यू 0 तो यहाँ पर है और y की वैल्यू 100 होगी समथिंग यहाँ पर। तो कर्सर आपका इस लाइन पे पहुंच जाएगा, यहाँ पर इधर इस जगह पे, है ना। x की वैल्यू 0, y की 100, समझ में आ गई। और फिर आपका देखिए -100, -100, का मतलब है ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, -100 0, सेकंड क्वाड्रेंट। y की वैल्यू -100 और x की वैल्यू 0 सर, y On the negative x-axis. y नेगेटिव का एक्स पॉजिटिव। हाँ, तो -100 0 हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। तो देखिए यहाँ पर पहुंचने के बाद वो उस जगह पर आ गया -100 0। अब आप देखिए -100 यहाँ पे होगा समथिंग, है ना, और 0 आपका y का यहाँ पर है, यानी -100 0 यहाँ पर होगा। तो वो पहले यहाँ था और यहाँ से मूव करके क्या आ गया ये। तो आपकी पहले तो गया वो इधर से इधर, फिर आया इधर से इधर। अब आपको पहुंचाना है फिर वो कहाँ पर, यहाँ पहुंचाना है। तो ये कौन सा लोकेशन है, ये वाला 0 0 0 0। तो आप देखेंगे कि यहाँ लिखा है गो टू 0 0। तो गो टू 0 0 से फिर वो यहाँ पर आने के बाद फिर से यहाँ पहुंच गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो पहले यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, ये ट्राइंगल बन गया। समझ में आ गई। अच्छा, अगर आपको टर्टल का करंट पोजीशन मालूम करना है कि वो कौन से पिक्सेल्स पर है, तो आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं POS, ये जो लिखा हुआ है। और POS एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो अगर आपको पता करने है कि टर्टल के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अभी क्या है, तो POS फंक्शन से आप पता कर सकते हैं, वो आपको बता देगा। केवल एक्स कोऑर्डिनेट पता करना है तो XCOR जो फंक्शन है ये वाला यूज कर सकते हैं। और वाई कोऑर्डिनेट पता करना है कि कहां पर है, वाई कोऑर्डिनेट की पोजीशन क्या है, तो YCOR का यूज कर सकते हैं। ये कुछ फंक्शंस हैं रिलेटेड। एक फंक्शन और है टर्टल की स्पीड फाइंड करने, स्पीड आपको चेंज करनी है कि किस स्पीड से टर्टल आपका दिखाई दे भागता हुआ। तो ये आप स्पीड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। और यहाँ स्पीड जो है 0 से 10 तक की कोई भी स्पीड दे सकते हैं, है ना। 10 जो है वो फास्टेस्ट होगा और 1 जो है स्लोएस्ट होगा। अगर आप 0 स्पीड रखते हैं, है ना, तो टर्टल विल मेक ऑल ऑफ इट्स मूव्स इंस्टेंटली, है ना। एनिमेशन डिसेबल हो जाएगा और आप 0 रखने पर वो
इंस्टेंटली उस पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर दिखाई देगा आपको, टर्टल भागता हुआ दिखाई नहीं देगा अगर आप 0 रखते हैं तो। स्पीड, एक कमांड है हाइड टर्टल। हाइड टर्टल से आप टर्टल को डिस्प्ले करना बंद कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा टर्टल। और शो टर्टल से फिर से दोबारा दिखाई देने लगेगा। ठीक है, अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है यानी स्क्रीन पर कुछ टाइप करना है तो राइट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। राइट फंक्शन से आप कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं और टेक्स्ट में आप कोई भी XYZ कुछ भी टेक्स्ट लिखेंगे वो टेक्स्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। उस टेक्स्ट का फॉन्ट नेम और साइज भी आप चेंज कर सकते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये कि हमें राइट करना है हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड को कोट्स में लिखा हमने और फिर फॉन्ट का नाम हमने दिया कुरियर 20। ये फॉन्ट का नेम है, ये इसका साइज है कि 20 साइज का। तो आपका ये जो हेलो वर्ल्ड है लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, ये आ गया। और अगर आपको किसी ग्राफिक्स में कलर फिल करना हो तो ये बिगिन फिल और एंड फिल, ये दो कमांड हैं। जहां से स्टार्ट करें फिलिंग करना वहां बिगिन फिल और जहां एंड करें वहां एंड फिल। उसके बीच में जो